Hi, welcome you all to the next session of marketing, that is FI BCom marketing. As you all know, in previous session we completed about types of channel of distribution, and today we will be dealing with the factors that affect the selection of channel of distribution. Before starting with the factors, we will just recall what we studied in the previous session. My dear students, in the previous session we studied about channels of distribution and we studied various channels of distribution, isn't it? Okay. I'll just recall you what is a channel of distribution. Channel of distribution is nothing but the protocol or the trade chain. It means through which the goods move from the producer or to the manufacturer, from the manufacturer to the ultimate consumer. चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो चेन है जहाँ पर गुड्स प्रोड्यूसर से या फिर मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक जाते हैं by way of all other helping agents like warehousing, transporting. They are not termed as an link or and they are not included in the channel of distribution too, but they are helping to make the movement of goods easy to go. Clear to it? There were four different channels of there were six different channels of distribution. First one was manufacturer to consumer, and this channel of distribution is also called as direct sale channel of distribution. Second one was manufacturer to retailer and retailer to consumer. Manufacturer to retailer and retailer to the consumer. In this channel of distribution, the retailer is bypassed, and this type of channel of distribution is adopted mostly by large retail giants like supermall. Then we have shopping malls, then we have hypermarkets, then we have highway markets, highway retailing, etc. This type of channel of distribution, this type of retailers adopt the channel of distribution, that is from manufacturer to retailer and retailer to consumer. Next one we have is manufacturer to wholesaler, wholesaler to retailer and retailer to consumer. This chain is also known as orthodox channel of distribution, and majoritarily consumer goods. Moreover, consumer goods 60 to 50 to 60% adopt are marketed through this channel of distribution. Next one we have manufacturer to agent, agent to wholesaler and wholesaler to consumer. ये वो ये जो चेन है, मैंने आपको पहले बताया, चेन में कभी भी एजेंट, मैन्युफैक्चर एजेंट, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ब्रांडिंग, ये लोग बिल्कुल भी नहीं आएंगे. बट हियर why the agent has been a part of channel of distribution, because in today's practical world, without the agent, the channel of distribution does not take properly. Goods like goods like where इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इंजीनियरिंग मशीनरीज एक्सेट्रा, वहाँ पर आपको ज़्यादातर एजेंट्स की हेल्प होती ही होती है. नेक्स्ट वन यू हैव इज़ मैन्युफैक्चरर टू एजेंट, एजेंट टू रिटेलर एंड रिटेलर टू कंज्यूमर. इस चेन में गुड्स मैन्युफैक्चरर से एजेंट के पास जाते हैं, एजेंट के पास से रिटेलर्स को जाते हैं और रिटेलर्स के पास से कंज्यूमर्स को जाते हैं. और इसमें जो है होलसेलर को बाईपास किया गया है, और जो इंटरमीडियरी है वो उसी इंटरमीडियरी को, दैट इज़ एजेंट को, पूरे होलसेलर का फंक्शन परफॉर्म करना होता है. होलसेल मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर एंड होलसेलर टू कंज्यूमर. इन दिस रिटेलर को ड्रॉप किया गया है एंड होलसेलर को रिटेलर का काम करना होता है. ये 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है. मैन्युफैक्चरर कोई भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अडॉप्ट कर सकता है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू अडॉप्ट करके भी अपना फंक्शन कैरी आउट कर सकता है प्रॉपरली. इज दैट क्लियर टू ऑल? This was what we studied in the previous session. In today's session, we will be dealing with the factors affecting channel of distribution. Clear to all? Okay, let's move further with it. It is very essential that the producer choose the right channel of distribution.
involve long-term commitment to other firms with whom the marketer enters into a contract. ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि मैन्युफैक्चरर कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अडॉप्ट करता है और उसको प्रॉपर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अडॉप्ट करना होता है या फिर प्रॉपर मेथड ऑफ कॉम्बिनेटेड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अडॉप्ट करना पड़ता है टू मैन्युफैक्चर द गुड, टू चैनलाइज द गुड इन द मार्केट. अ चूजन चैनल कैन नॉट बी टर्मिनेटेड ओवरनाइट, क्योंकि जब कोई चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अडॉप्ट किया जाता है तो उसको एक दिन में चेंज नहीं कर सकते या फिर उसको टर्मिनेट भी नहीं कर सकते एंड विल अडॉप्ट द अदर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ऐसा पॉसिबल नहीं है. इसीलिए जब भी मैन्युफैक्चरर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करता है तो उसको वो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कॉन्शियसली सेलेक्ट करना होता है. नेक्स्ट वन वी हैव इज a chosen channel of distribution cannot be terminated overnight, and hence a lot of thought and analysis of number of factor is done before the channel options is finalized. जब कोई channel option finalize करते हैं उसके पहले बहुत सारे analysis किए जाते हैं so that one proper channel of distribution can be finalized. तो फर्स्ट है जो फैक्टर अफेक्ट करता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को, वो है प्रोडक्ट. व्हेन डिसाइडिंग द चैनल टू बी अडॉप्टेड द फर्स्ट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इज़ द प्रोडक्ट कैटेगरी. जब आप कोई चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अडॉप्ट करते हो तो सब में पहले डिसीजन करते वक्त सब में पहले जो फर्स्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको अडॉप्ट करना पड़ता है, आपको दिमाग में लाना पड़ता है, तो वो है प्रोडक्ट का कैटेगरी. A consumer product will require a different channel as compared to an industrial product, क्योंकि कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ये दोनों प्रोडक्ट को डिफरेंट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ती है. द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ कंज्यूमर प्रोडक्ट विल बी लॉन्गर वन एंड दैट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट विल बी शॉर्टर वन. क्योंकि कंज्यूमर प्रोडक्ट का जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि ये जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत होती है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत होती है. द अदर फैक्टर पर्टेनिंग टू प्रोडक्ट which will have to be considered are use of the product, frequency of purchase, fashion, habit, perishability, level of service. और जो दूसरे फैक्टर्स है जब एक प्रोडक्ट के चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सेलेक्ट किया जाता है तो उसके अदर फैक्टर्स को भी देखा जाता है, जैसे कि वो कितना टाइम में पेरिशेबल होने वाला है, उसकी फैशन क्या है, लोगों की उस प्रोडक्ट के लिए हैबिट्स क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट का यूजेस क्या है, उस हिसाब से. इफ़ अ प्रोडक्ट इज़ पेरिशेबल or fragile, a product producer will prefer few and controllable level of distribution. For perishable goods and speedy movement need shorter channel और route of distribution. अगर कोई गुड्स पेरिशेबल गुड्स है तो मैन्युफैक्चरर एक शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अडॉप्ट करेगा सो दैट द गुड्स विल रीच द फाइनल कंज्यूमर इन द गुड क्वालिटी. सिमिलरली फॉर ड्यूरेबल एंड स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स अ लॉन्गर चैनल may be used. For technical product requiring special selling and service talent, the shorter channel may be used. Product of high unit value are sold directly by traveling sale force and not through middlemen. Clear to it? Okay, next factor is market. The channel selected depend upon the nature and the extent of the market. जो चैनल आप सेलेक्ट करते हैं प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसके वो प्रोडक्ट के नेचर के ऊपर और मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है. इफ़ अ मार्केट साइज इज़ लार्ज वी मे हैव मैनी चैनल. However, if the market size is however it is a small market, direct selling will be done. अगर मार्केट बड़ा है तो लार्ज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप सेलेक्ट करते हो. अगर मार्केट छोटा है तो आप डायरेक्ट सेलिंग करके भी आपके प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो. Clear to it? Then we have the other factor, that is cost. The most fundamental criteria for channel decision and channel choice is the economic criteria. जब जो प्रोडक्ट जो हम लोग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करते हैं तो उसका सब में इम्पॉर्टेंट जो क्राइटेरिया होता है प्रोडक्ट के बारे में मार्केट के बाद वो होता है कॉस्ट, कि कितना कॉस्ट बेरिंग है. Profitable organizations are primarily interested in cost minimizing in distribution
एंड अश्योरेंस ऑफ रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन। जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो मिनिमम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को प्रीफर करते हैं सो दैट मैक्सिमम प्रॉफिट कैन बी अचीव्ड। Thus, the channel generating the largest sale volume at lowest unit cost will be given the priority। बड़े ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, वो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को प्रीफर करते हैं जो लार्ज सेल्स वॉल्यूम को सेल करते हैं और कम कॉस्ट में सेट हो जाते हैं एंड जो कॉस्ट को रिड्यूस करके प्रॉफिट ज़्यादा कमाते हैं। नेक्स्ट वन इज चैनल यूज बाय राइवल कॉम्पिटिटर्स। अभी राइवल कॉम्पिटिटर्स कौन से चैनल यूज़ करते हैं, वो चैनल पर भी अपना चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द राइवल फर्म इज यूजिंग द रिटेल चैनल, द मार्केटर में डिसाइड टू यूज डोर टू डोर सेलिंग वेयर एज देर इज नो कॉम्पिटिशन। क्लियर टू इट? ओके। नेक्स्ट वन वी हैव इज मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट भी अफेक्ट करता है एक प्रोडक्ट के चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सेलेक्ट करते वक्त। The marketing environment can also influence the channel decision. During recession or depression, a smaller channel of distribution is usually preferred. In time of prosperity, we have wider choice of channel of distribution and alternatives. क्या होता है मार्केटिंग एनवायरनमेंट में कि अगर एनवायरनमेंट में रिसेशन चल रहा है या डिप्रेशन चल रहा है तो उसके ऊपर भी आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करता है, डिसीजन सेलेक्ट करते हैं। अगर रिसेशन है तो शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रीफर किया जाता है, अगर डिप्रेशन है तो लार्ज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अडॉप्ट किया जाता है। देन द कंपनी साइज डिटरमाइन द साइज ऑफ द मार्केट, the size of its large accounts and its ability to get cooperation from the middlemen। कंपनी के साइज पर भी डिपेंड करता है कि वो कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अडॉप्ट करे, क्योंकि लार्जर द साइज, लार्जर विल बी द सेल्स वॉल्यूम, लार्जर विल बी द अकाउंट्स एंड लार्जर विल बी द एबिलिटी टू हैव द कोऑपरेशन विद द मिडलमैन। अ बिग फर्म में हैव शॉर्टर चैनल। अ कंपनी विथ a company with substantial finance resources need not depend upon middleman। जो कंपनी के पास ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो मिडिलमैन पर कभी भी डिपेंड नहीं करता। इट कैन अफोर्ड टू रिड्यूस द लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैव इट्स ओन एक्सक्लूसिव आउटलेट्स, क्योंकि वो लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिलीट करती है क्योंकि उसके खुद के अपने एक एक्सक्लूसिव आउटलेट्स होते हैं। और फाइनेंशियली वीकर कंपनी हैव टू डिपेंड अपॉन द अवेलेबल मिडलमैन। छोटे फाइनेंशियल कंपनी जो वीक फाइनेंशियल कंपनीज है उसको मिडलमैन पर डिपेंड होना पड़ता है। न्यू कंपनीज हैव टू रिलाई अपॉन मिडलमैन ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। और न्यू कंपनी को भी मिडिलमैन्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है क्योंकि उनके पास एबिलिटी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है एंड लैक ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं। इसीलिए अ कंपनी डिज़ाइनिंग टू हैव अ बेटर कंट्रोल ऑन इट्स प्रोडक्ट विल यूज़ अ शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और ऐसी कंपनी जिसके प्रोडक्ट के ऊपर अपना कंट्रोल है वो शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करती है। इन शॉर्ट, द सिलेक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू इट सीम्स ईजी, इट इज़ नॉट सो। हमें ऐसा लगता है कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करना ईजी है, बट वो ऐसा नहीं है क्योंकि जो फैक्टर्स जैसे प्रोडक्ट है, मार्केट है, देन वी हैव cost, then we have channel used by the rival competitors, then we have marketing environment, then we have company। इतने सारे जो बड़े बड़े फैक्टर्स है इनको सबको स्टडी कर कर एक प्रॉपर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अडॉप्ट किया जाता है। और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अडॉप्ट करने का जो डिसीजन है ये बहुत क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है, क्योंकि एक दिन में या एक रात में पूरा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते। एंड ऐसा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को सेलेक्ट करना होता है जो कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट दे और कम कॉस्ट में अपने ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आउटले हो। देन selecting the best channel will depend upon the balance of this factor and the relative importance which the management attach to each of the factors in any particular set of circumstances. There is no best channel for all the manufacturers of a single class of product. Each management will have to take their own decision depending upon their unique situations and requirement. Clear to it?
What are the factors that to be taken into consideration while selecting the channel of distribution? That is product, market, cost, channel used by the rival companies, marketing environment, and categories. Got it? Okay, please go through the video, watch the video. If you have any doubts and queries, please pin me on the email ID provided to you by the college. Thank you all. Thank you. Be at home, be safe.